हेलो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत देशपांडे जी। प्रशांत देशपांडे सर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. He has been actively involved in various business portfolios, social reformation movements, and actively executing various educational entrepreneurial projects all across the western part of our country. He has been elevated to the position of National Executive Committee of Swadeshi Jagran Manch and nominated as a director of Swarnim Bharatwas Foundation. Thank you so much. Hello everyone. In today's podcast, we are with Mr. Prashant Deshpande sir, who is who is in National Executive Committee of Swadeshi Jagran Manch. He is also nominated as a director of Swarnim Bharatwas Foundation. He is an electrical engineer, postgraduate in marketing. He is also ex-deputy CEO of Goregaon Sports Club. Prashant Deshpande sir is having experience of more than 35 years in various fields. So today, we will learn many things from Prashant Deshpande sir. So welcome to our podcast. Thank you. Sir, when I see कि you are the National Executive Committee of Swadeshi Jagran Manch and you are also nominated as a director of Swarnim Bharatwas Foundation. So can you brief all these entities what you exactly do और आप वहाँ पे क्या करते हो? ऐसा है, this Swadeshi Jagran Manch is basically working for movement on the Swadeshi. That is, what's happening is that the country has its own economy, and that economy needs to be enriched. And that enrichment is possible only when you have the local industry growing up. And to make that local industry to grow, that a larger perspective of the Swadeshi has to be propagated properly. In a sense, is that the industry who is manufacturing some product in India, and if those instead of buying those products, if we are buying similar products from some multinational companies, then the profit of this multinational company is never distributed among us. Yes, sir. So, though it definitely adds up to the economy of the country, but then ultimately the local industry doesn't get benefited. Yes. So the important is that whatever is manufactured locally, that is required to be propagated, and that is required to be accepted by the people. If there is any improvement required in that, looking at the global standards, then that can be brought to the notice of these manufacturers, and that quality can be upgraded. Yes. But unless until the local industry grows, the India's economy cannot grow. And that was a very fundamental concept on which the Swadeshi Jagran Manch was initiated, was started, and that was way back in 1991, 22nd November, by Shraddhe Dattopant Thengdi ji, who was again a thinker, a visionary person, and who could see is that unless until we are not vocal for local, and unless until we increase the export of the country, this economy cannot grow. And in those days, is that the WTO and the GATT agreement and all those things happened during that 1992, 92, 93. In those 3-4 years, these many global changes have taken place. And in those days, this Swadeshi Jagran Manch inception took place. And Shraddhe Dattopant presented this concept, and yes, and the journey started. So that is the Swadeshi Jagran Manch. Okay? Yes. So what I have heard from you कि मैंने आपसे एक चीज अभी सुना कि आप बोल रहे हो कि ये मूवमेंट 1991 में चालू हुआ. बेसिकली हम स्टार्टअप इंडिया तो अभी 2-4 साल पहले से सुन रहे हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि 1991 से वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट तभी से चालू हुआ है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो है ना, उसको ग्रो अप होने में इट टेक्स टाइम. It cannot just overnight. No change can take place when there's such a large population is concerned. In 1991, we were somewhere around 80 to 90 crores. That was the total population of the country. But to bring some changes in these 80 to 90 crore people,
it takes time, and when we started, we knew is that there will be a sizable time that will be that will go in just keeping, getting this awareness created. But yes, that was determination, and we thought is that it should be done, and we started the journey, and today the result is there. That when the very positive government is also come to the power in the center, in the state, and everywhere we see, and that's how the things are growing now. सो सर, जो आपका जो मैंने एक स्टार्ट में सुना कि आपने ये बोला कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इंडिया में बेचना चाहिए और इंडिया के लोगों ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स में लेना चाहिए। Correct. अपने देश में करीबन 60-70 करोड़ युवा है। युवा की डेली के नीड्स होते हैं, कपड़े हैं, वॉच है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो आप युवाओं को क्या मैसेज दोगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपने जो फॉरेन का अगर तुम कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके बजाय आप इंडिया का प्रोडक्ट एग्जांपल यूज करो। जीन्स का एग्जांपल है, इवन अपने जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी यही बोला कि लोग यहाँ से खादी का कपड़ा लेके जाते हैं, बाहर जाके उस पर लिवाइस का टैग लगा के इंडिया में 5,000 में बेचते हैं, वही जीन्स आपको खादी में 1,000 रुपए मिलता है। सो स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आपका मैसेज युवाओं को क्या होगा? ऐसा है कि आज हम देखते हैं कि अपने देश में करीब 6,800 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये 6,800 प्रकार के प्रोडक्ट में से देयर आर 6,700 टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स दोज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, but unfortunately we are not manufacturing more than 2,300. Yes. So there is a huge gap between 2,300 and 6,700. So these many products have the very huge market available here. Do समय But unfortunately, up till now, that awareness was very less. And now people have started understanding the gravity of the situation. क्योंकि जब तक यहाँ पर वो माल बनना शुरू नहीं होगा, तो आज 10 रुपए की चीज़ जो है वो 80 रुपए में बिकती है। तो ये बाकी का 70 रुपए का जो प्रॉफिट है, वो सब तो मल्टीनेशनल कंपनी लेकर के जाती है। यस सर। और जब कोविड जैसी स्थिति आती है, तो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेज़न एंड वॉलमार्ट ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा दान दे दिया। ट्रू सर, राइट। वी नो इज़ दैट रतन टाटा टाइप ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो भारतीय थी, तो इन भारतीय कंपनियों ने यहाँ के समाज के लिए विचार किया और अपनी तरफ से दान दिया, बट नो मल्टीनेशनल कंपनी हैज गिवन दिस टाइप ऑफ द डोनेशन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. ट्रू सर, राइट। So it means is that this multinational company have just come to India to suck this country, and well, rest is the known fact to the people. So is that we need to promote the local companies and local industry, local manufacturers. सो सर, व्हेन यू हैव दिस मोटो, अगर आपका ये मोटो है कि लोकल प्रोडक्ट लेना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने लेना चाहिए, सो you are being a part of national executive committee, what are the steps Swadeshi Jagran Manch is taking to create an awareness? What has happened is that during the COVID, there was a huge unrest all across the country. Not only across the country, it's across the globe. And but we are thinking about presently Bharat. So obviously हम भारत के बारे में ही सोचेंगे। तो भारत में भी ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर युवा की संख्या भी बहुत है। आज 15 से 29 की आयु में करीब 37 करोड़ नौजवान इस देश के अंदर हैं। 37 करोड़ फ्रॉम 15 to 29 एज ग्रुप। तो आज इन लोगों में से यदि इनकी नौकरियां गई है, यदि इनके जो उद्योग धंधे हैं, यहाँ की इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रेस में आ गई थी, उनका ग्लोबल मार्केट का सारा नेटवर्क टूट गया था, ऐसे समय पर स्वदेशी जागरण मंच, चूँकि मंच जो है वो काम करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ अ बिग मेजर एलिमेंट। तो स्वदेशी जागरण मंच ने नेतृत्व लेकर के और एक स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान ऐसा शुरू किया, और इस स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हम तरुणों को उद्यमिता की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उनको उद्योजकता की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्यों ये आवश्यक है?
क्योंकि यदि आज के नौजवान को केवल नौकरी के बारे में सोचने की आदत पड़ गई, तो आने वाले समय में इतनी सारी नौकरियां तो नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आप भी जानते हो कि धीमे-धीमे ये सारा ऑटोमेशन पे जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी, इसके कारण बहुत सारे जॉब अब खत्म होने वाले हैं। तो जहाँ पर आवश्यकता है कि जॉब बढ़ने चाहिए, उसकी जगह पर जॉब कम होने की स्थिति आ रही है। तो ऐसे समय पर यदि नौजवान को आप कुछ स्किल नहीं दोगे, उसको यदि ये सिखाओगे नहीं कि आपने उद्योजक बनना है, तो वो तो देश पर बोझ बन जाएँगे। और आज के नौजवान जो है वो बड़ा इनोवेटिव है, वो बड़ा ऊर्जावान है और गूगल गुरु उसके साथ में है और वो जो चाहे वो कर सकता है। केवल उसको एक प्रॉपर इकोसिस्टम देने की आवश्यकता है। तो इस स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जिससे उस नौजवान को मैन, मशीन, मनी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उसको एक वन विंडो शॉपिंग की तरह मिल जाए और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। सो स्वदेशी जागरण मंच एक्चुअली बहुत बड़ा काम करता है। सो मैंने आपके कुछ स्वदेशी जागरण मंच के यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उसमें से एक नारा मैं आपको पूछना चाहूँगा। मैंने एक सुना, किसी आपके लोगों से सुना कि दूध दही के देश में नहीं चलेगा कोका कोला। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मुझे बता सकते हो आप? जी, ऐसा है कि अपना देश हज़ारों वर्षों की जो यदि अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी परंपरा है, तो अपने यहाँ पर लोग कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती थी, हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था और ऐसी सारी चीज़ों से हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो जहाँ दूध-दही की नदियाँ बह रही हो, ऐसी जगह पर वो ऐसा एक पेय पदार्थ है, एक ऐसा ड्रिंक जो बेसिकली हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और हम सब जानते हैं उसकी पीएच वैल्यू वगैरह ऐसे बहुत टेक्निकल बातों में मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छे वैद्य ने कहा कि ये तो टॉयलेट क्लीनर है। तो क्या हम टॉयलेट क्लीनर पीने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? राइट सर। और दूध और दही से तो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। राइट, तो क्यों नहीं हमने उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमने वो नारा लगाया है कि दूध दही के देश में कोका कोला नहीं चलेगा। क्योंकि एक तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो आया है विदेशों से। राइट, और हम तो स्वदेशी जागरण मंच के लोग हैं। तो हम तो समाज को यही कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा कोका कोला जिसकी पीएच वैल्यू इतनी ऐसी होने के कारण आपकी सारी आंतड़ियों को, आपके सारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन, वो दोनों को खराब कर रही है और ऐसी चीज आप पीना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। राइट सीक्रेट। लेकिन यही है, जागरण का विषय है तो हम जागरण का विषय कर रहे हैं। सर बेस्ट है, बिकॉज़ आजकल मैं भी देखता हूँ कि कॉलेज के बच्चे जब कॉलेज छूटता है, उसके बाद में पानी की बॉटल की जगह पे पेप्सी का बॉटल ले लेते हैं। 2-3 जन शेयर करके पीते हैं। बट आपके अभी बताने के बाद मैं तो सब युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि पेप्सी कोला या कोका कोला पीने से अच्छा आप छाछ पी सकते हो, आप दही पी सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। यू कैन टेक अमूल मिल्क आल्सो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस देन हैविंग कोका कोला एंड पेप्सी। सो ये नारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूध दही के रेस में नहीं चलेगा कोका कोला। सो ठीक सर, और 2-3 नारे ऐसे बता सकते हैं जो आपके यूनिक नारे हैं, जो थोड़ा-सा यूथ को को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके पास? हम कहते हैं कि गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता व स्वरोजगार, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या है, अब गांव शहर की एक पुकार क्या है? तो आज गाँव के अंदर भी लोग भले खेती करते दिखाई देते हैं, लेकिन उस खेती के भी इतने सारे आयाम हैं। अपनी इकोनॉमी की यदि कोई स्टडी करता है तो पता है कि अपने यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का है। हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर के कारण जाना जाता है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन, द मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर द क्रॉप्स इज़ अवेलेबल इन भारत। इस तो जब ये है, तो हर गाँव का बच्चा जो है, हर गाँव का नौजवान एक उद्यमी बन सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। तो हम उनको कह रहे हैं कि भाई उद्यमी बनो, आप शहर की तरफ वो 15,000 की नौकरी के लिए मत भागो। यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर में से आज तो प्रोसेस फूड के कारण आपको अपेड़ा के थ्रू जाओ तो आपको पूरा विश्व का मार्केट मिलता है। तो क्यों नहीं उसके पीछे प्रयास करना चाहिए? तो हम कह रहे हैं गाँव शहर की एक पुकार,
उद्यमिता और स्वरोजगार। स्वरोजगार बेस्ट है सर, बेस्ट है सर। सो एक थोड़ा सा एक मेरा स्टूडेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड ओवर नॉट गेटिंग इनटू टॉप कॉलेजेस। इज द ब्रांड नेम इज एवरीथिंग, or can tier 2 colleges or tier 2 cities colleges also can shape great careers? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वो इस दृष्टि से कि देखिए आज ज़माना थोड़ा बदल गया है। नहीं तो क्या हमने सुना है स्वामी विवेकानंद किसी आईआईएम में गए थे या कोई आईआईटी में गए थे? नहीं, लेकिन प्रतिभा थी। आदमी के अंदर प्रतिभा है तो वो टियर 2 के कॉलेज से भी बड़ा काम कर सकता है इस वक़्त। भाई धीरूभाई अंबानी कौन से आईआईटी में गए, कौन से आईआईएम में गए थे, कौन सा ब्रांड नेम उनके साथ लगा हुआ था? वो स्वयं ब्रांड बन गए। Like और उन्होंने स्वयं ने रिलायंस जैसा बड़ा ब्रांड पूरा वर्ल्ड ग्लोबल ब्रांड बनाया। आप पहले 10 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसको देख लो। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे समय बदलता गया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया होगा। बट व्हेन दे स्टार्टेड एज़ अ स्टार्टअप और एज़ एन एंटरप्रेन्योर, they were not from the business schools, or they were not from the technical brand names and all. They were from a small city, a small college. yes, even sir Gautam Adani is also not done anything from IIT. Exactly. Or even Mukesh Ambani. Yes. But still they have built a very big empire. Yes. Today they are contributing somewhere around 10 to 12% of the total economy of the country. Not from IIMs and IIT. Not IIM and IIT. इसका मतलब IIT एंड IIM को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका आज स्तर अलग है और वहाँ पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़े टैलेंट की जरूरत होती है। कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट टेक द एडमिशन इन दिस बिग नेम और बिग कॉलेजेस। बट यस, समय बदला है। मतलब हम बस ये ट्राई कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, बिकॉज होता क्या है सर, आप IIT IIM में देखो या मुंबई का जमनाल बजाज देखो, उनका इंटेक होता है 200 400 500 600 बच्चों का, 1000 बच्चों का करे, और यहाँ पे 2-5 लाख बच्चे सीईटी का एग्जाम देता। तो 200 बच्चे का अगर मतलब 200 बच्चे जीबीएमएस में जाते हैं, तो यहाँ पे 5 लाख बच्चे जीबीएमएस में नहीं जा पाते, तो वो डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अगर आईएम में नहीं गया, आईआईटी में नहीं गया, जीबीएमएस में नहीं गया, तो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, या हम वो बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वही जिंदगी नहीं है, उसके बाहर भी सबसे बड़ी जिंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आईआईटी में नहीं मिला, मुझे आईआईएम में नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी क समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिए, उन्होंने पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है एटीट्यूड का प्रश्न है। राइट। मैंने कई आईआईटी, आईआईएम वाले देखे हैं, जो कुछ नहीं कर पाए। मतलब शुरुआत की, वे आईआईएम से आया तो कहीं यहाँ से वहाँ से फंड ले लिया, थोड़ा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने आती थी, सो दे स्टार्टेड वेल, बट दे कुड नॉट रियली गो वेरी लॉन्ग, दे जस्ट ड्रॉप डाउन। तो ऐसी स्थिति होती है। ये सारी चीज जो है ना वो माइंड है। ये सारा जो है ना मेन पावर स्टेशन जो है वो माइंड है। सो अपना एटीट्यूड है। आदमी का एटीट्यूड यदि होगा तो वो स्वामी विवेकानंद बन सकता है। यस सर। उसका एटीट्यूड होगा तो वो धीरूभाई अंबानी बन सकता है। राइट। लेकिन यदि एटीट्यूड नहीं है और आप दुनिया का सबसे बड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे, लेकिन एटीट्यूड नहीं है। एंड इट कम्स विद डूइंग समथिंग। एब्सोल्युट ऐसा नहीं होता कि मेरे फादर अमिताभ बच्चन है तो अभिषेक बच्चन ऑल्सो कैन बिकम अमिताभ बच्चन। एग्जैक्ट। और शाहरुख खान का बेटा भी कभी शाहरुख खान नहीं बन पाएगा, या अभिषेक बच्चन कभी अमिताभ बच्चन बन नहीं पाएगा। बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लर्न। एग्जैक्टली। तो उसका ग्रो कैसे होता है, उसको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है। नहीं तो सबसे अच्छा बीज जो है वो आप ले जा करके किसी रेगिस्तान में लगा दोगे, इट डजेंट मीन दैट इट विल रियली क्रॉप्ड अप, यस सर। and it is not necessary that it will become a very good fruitful exercise. यस सर। ये तो उस बीज के अपने पोटेंशियल पे सारा डिपेंड करता है। यस। यदि पोटेंशियल है तो आदमी कुछ भी बन सकता है। ट्रू। ट्रू यस। बेस्ट से। सो और एक क्वेश्चन उसको रिलेट करके वो पूछना चाहूंगा। नाउ अभी देखोगे तो पूरा स्टार्टअप का जमाना चल रहा है, बिजनेस का जमाना चल रहा है। इवन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, they are not depending on one business. You take an example of Mukesh Ambani or Tata or Birla or any businessman. They have multiple sources of businesses, multiple sources of income. So even an individual person when he's working somewhere, he's doing something. वो अपना पैसा स्टॉक में लगा देता है,
कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वाला कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस कर ले, कुछ ना कुछ स्टार्टअप का ये जो स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसका इफेक्ट हर घर में हो चुका है। और जो अपनी हर घर की महिलाएं हैं, वो भी आज के डेट में कुछ ना कुछ कर ही रही है। बिल्कुल। तो एक उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, एक स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सपोज वो लाइक 10th पास कर रहा है, 12th पास कर रहा है, क्योंकि होता क्या है आज के ज़माने में, या मेरी पता नहीं आपके टाइम पे भी ये हुआ था कि नहीं, कि जब आपने कॉलेज पास आउट किया था, कि आपको कोई बताने वाला था कि आपने स्टार्टअप करना चाहिए? क्या आपको कोई बताने वाला था मैं फंड देता हूँ स्टार्टअप कर लो? या अभी के यूथ के पास सब रेडीमेड है? तो आप उनको ऐसा क्या सजेशन देना चाहोगे जिसके वजह से वो अर्ली स्टेज में दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप? अब क्या हो गया है कि सौभाग्य से यानी देश स्वाधीन हुआ 1947, उसके बाद में ऐसी कुछ शिक्षा प्रणाली अपने यहाँ चली जो 2020 तक चलती रही। तो उस शिक्षा प्रणाली में ऐसा कहीं पर नहीं था कि नौजवान को कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई प्रेरणा मिले और उसका जो स्किल है, वो उसको कहीं डेवलप करने के लिए कोई स्कोप हो। ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। नहीं था। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो अनेक जगह पर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। एंड वी नो इज दैट नाउ बिकॉज ऑफ दैट लोगों का जो झुकाव है स्किल के ऊपर वो बढ़ गया है। एक दूसरा, सरकारें भी जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, जो आज से 15-20 साल पहले नहीं थी। 20 साल पहले तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट नाम की कोई मिनिस्ट्री हुआ करती थी। अब 20 साल, पिछले 20 साल के प्रयत्नों के कारण अब वो लोगों के ध्यान में आने लग गया कि यदि मेरे हाथ में कुछ स्किल है तो मैं स्वयं का खुद का भी धंधा चालू कर सकता हूँ। मैं शुरुआत में अकेले शुरू करूँगा और उसके बाद में धीमे-धीमे उसको डेवलप करूँगा। यस। सो जैसे सर आपने बताया कि अभी स्टार्टअप स्किल्स डेवलपमेंट चल गया, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। तो मुंबई में महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार की मिनिस्ट्री उसके लिए काम चालू किया है, काम कर रही है, क्या अभी कैसे क्या क्या चल रहा है? नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और स्टार्टअप के बाद में अब स्टैंड अप इंडिया की तरफ भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो स्टैंड अप इंडिया के कारण जो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और किसी कारण से स्ट्रेस में आ गई है, कोई भी मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट उसको वहाँ से बाहर कैसे निकालना, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया भी शुरू हुआ है और उसमें सरकार पूरी तरह से मदद कर दी है। उनके अलग-अलग फंड्स आ रहे हैं इसके लिए और उसके माध्यम से अभी बीच में मैग्नेटिक महाराष्ट्र हुआ था, हाँ, हुआ। which you must have seen. So during that, many of the companies who were in the need of the cooperation or assistance from the government, they were approached to the government and government has extended their cooperation to them. And because of that, the environment has changed. The industry friendly atmosphere has created, and because of that the industry which was which were in the mood of just shifting from this state to another state, like where it's a industry friendly environment, those industry have remained in Mumbai or they have remained in Maharashtra. Like, so that is a big achievement of the government. मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है युवाओं को एक सही दिशा दिखाने के। सो अभी और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि अभी न्यू एनईपी में सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। तो आप युवाओं को ऐसा क्या एक कुछ गाइडेंस बोलो या कुछ टिप्स बोलो, ऐसा क्या टिप्स दोगे जो युवाओं को, हर एक युवाओं को यूज़ करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लेक्चर लेने जाता हूँ, मेरा लेक्चर हो जाता है, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, जिससे मैं कॉलेज के नीचे आ जाता हूँ, मैं कुछ युवाओं को सिगरेट पीते हुए देखता हूँ, कुछ युवाओं को बाइक पे बैठ के ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करके घूमते हुए देखता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये जनरेशन थोड़ा कुछ अलग दिशा में जा रही है? तो क्या हमें हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेके? क्या होता है कि सबसे महत्व की बात है संस्कार। यस। यदि कल्चर ठीक है, यदि उसको एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन, इफ ही हैज ग्रोन अप विथ गुड कल्चर, जैसे मान लो आज मैं कार चला रहा हूँ, बट यदि मेरे में कल्चर नहीं है तो मैं कैसे भी चलाऊंगा, मैं नियम तोड़ के चलाऊंगा। तो मैं कितना भी अच्छा मैं फरारी चलाना जान रहा हूँ,
मैं फरारी चला रहा हूँ, कार सबसे महंगी और बड़ी है, लेकिन मेरे में कल्चर नहीं है, तो क्या होगा? मैं कहीं न कहीं जाके एक्सीडेंट करने वाला हूँ। वही व्यक्ति यदि जाकर के पायलट बनेगा, तो कहीं भी जाकर के विमान ठोक देगा। सच। तो मुख्य बात जो है वो कल्चर की है, मतलब ये फैमिली से स्टार्ट होता फैमिली से शुरू होता है। इसके लिए लोग ये कहते हैं ना कि अरे मेरा बेटा तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया और वो कुछ करता ही नहीं है, तो वो बेटे का दोष नहीं है, ये उसके माँ-बाप का दोष है। माँ-बाप ने वैसे संस्कार पहले से दिए नहीं है। इस और जब युवा भी बड़ा हो रहा है ना, तो उसने स्वप्न बड़े देखने चाहिए। आज अपने स्वप्नों की साइज़ छोटी होती जा रही है। तो जब तक युवा को आप कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं बताओगे, जब तक उसको ये नहीं कहते हो कि ये भारत को हमको 2047 में विश्व गुरु बनाना है और समृद्धि युक्त भारत बनाना है, भारत को गरीबी मुक्त बनाना है, भारत को पूर्ण रोजगार युक्त बनाना है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हुँ। ऐसा भाव जब तक उसके मन में खड़ा नहीं करते हो ना, तब तक वो अपने बारे में ही सोचता बैठेगा या अपने परिवार के बारे में ही सोचता बैठेगा। आप जिस-जिस बड़े जितने भी हैं, बिल्कुल स्टीव जॉब्स से लेकर के, तो बिल्कुल आप कोई भी बड़े उद्योजक को ले लो, उसने बहुत बड़ा सोचा। उसने नेशन के बारे में सोचा, बाद में उसने ग्लोबल सोचा। तो जब वो ग्लोबल सोचता है तो कम से कम नेशन तक तो पहुँच ही जाता है। दैट्स ये सब भी आज रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप हो गया, अदानी इतना बड़ा ग्रुप हो गया या टाटा इतना बड़ा ग्रुप हो गया या जो भी अपने भारतीय कंपनियाँ इतनी बड़ी हो गई। आज से शायद 30-40 साल पहले हम कभी बाहर जाकर के वहाँ की कंपनी खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं थे। नहीं राइट। लेकिन टाटा ने जाकर के टेटली टी खरीद लिया राइट सर। और बस तब से जो चल पड़ा सो चल ही पड़ा। और धीमे-धीमे देखो अब तो भारतीय कंपनियाँ जाकर के और टेक ओवर कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ टेक ओवर कर रही है। ये कैसे हो रहा है? तो एक जो है सपना देखना पड़ता है, एक बड़ा विज़न रखना पड़ता है और ये विज़न देने का काम समाज का भी है, सरकार का भी है और स्कूल कॉलेजेस का भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली का है। उसका परिवार जब तक ऐसा एनवायरनमेंट देता नहीं है, यही करेगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि सर अभी इवन मैं ये भी देखा इवन वेन पीपल स्टार्ट बिजनेस, जब कोई छोटा स्टार्टअप वाला बिजनेस चालू करता है, वो कंपटीशन से ज्यादा अपने फैमिली से लगता है। मतलब फैमिली के एनवायरनमेंट की वजह से वो खुद ही इतना अंदर से मर जाता है कि वो कंपटीशन से लड़ ही नहीं पाता। लड़ी तो मुझे लगता है कि जो फैमिली ये सुन रही है, तो अपने पेरेंट्स पेरेंट्स बन के एक अपने बच्चे को या अपने बेटी को या बेटे को सपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, पास होगा, फेल होगा, फेलियर होगा, दैट इज अनदर स्टोरी। बट अगर घर में ही अगर वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो मुझे लगता है कि यूथ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भी युवा ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। मैं इसमें पूर्णतः विश्वास करता हूँ, 100%। क्योंकि थोड़ा मजाक के मोड़ में कहूँ तो मेरे में एंटरप्रेन्योर बनने के कोई गुण नहीं थे यार। लाइक्स। बट अंदर का युवा को जागृत करना पड़ता है। उसको कहीं न कहीं से पोषण मिलता है। कहीं न कहीं ऐसा फ्रेंड सर्कल मिलता है, जो उसको हिम्मत देता है। बस किसी ने हिम्मत दी तभी हम कुछ कर पाए जीवन में। अच्छा। नहीं तो क्या है जिन लोगों को बताते नहीं है, यदि हमने किसी को कहा ही नहीं, हनुमान जी को किसी ने बताया नहीं कि तेरे में ताकत है कि तू यहाँ से उड़ करके वहाँ जा सकता है। जब जाम्बुवंत ने जाकर के उसके अंदर के हनुमान को जागृत किया और उसको बताया कि तेरे में ताकत है, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? तब जाकर के हनुमान के अंदर वो जागृत हुआ और वो उन्होंने एक छलांग लगाई और हर एक के वहाँ चले गए। जामवंत होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, यस। नहीं तो अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा। अपने यहाँ तो गुरु परंपरा वही है लाइक्स। कि लोग कहते हैं ना कि भई मतलब गुरु बिना ज्ञान नहीं, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं भई गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु क्यों ज़्यादा महत्व का है, तो उसने ही तो गोविंद तक जाने का, ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया। इसके लिए गुरु बड़ा है। राइट। सो सर एक वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी देखा तो 12th का रिजल्ट हुआ। मेरे मोबाइल में किसी ने एक न्यूज़ भेजा, मैंने न्यूज़ पढ़ा और सुन के बहुत दुख हुआ कि मैंने पढ़ा कि एक 12th
पास हुई लड़की ने कम मार्क्स मिले इसलिए सुसाइड किया। तो इन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि सुसाइड यही ऑप्शन है, क्या और कुछ ऑप्शन है जिसके तो आप ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हो? नहीं, ये तो मतलब बड़ा दुखद है और मेरी श्रद्धांजलि है उसको। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि आज बच्चों के साथ में भी काउंसलिंग बंद हो गए। माँ भी जो है वो व्हाट्सएप पर बिज़ी है जी सर। और लड़की तो है ही है। वो अपना सेल्फी निकाल कर के और रील्स बनाने में बिज़ी है वो। तो बच्चों के साथ का जो काउंसलिंग है, वो जो उसके अंदर जो वो घुट-घुट करके वो परेशान हो रही है ना, उसको कहीं वेंट आउट ही नहीं है। उसको कहीं न कहीं किसी के पास में जाकर के बोलने के लिए उसके पास में कोई चांस ही नहीं मिलता है उस सच। तो इनको कहीं न कहीं कोई सुनने वाला चाहिए और सबसे ज़्यादा वो खुल करके बात करना आना चाहिए उसको माँ से, अपने पिताजी से। पिताजी से ठीक है थोड़ा-सा आदमी रिज़र्व रहता है, लेकिन माँ ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए उसके साथ में, क्योंकि एक उम्र के बाद में तो वो अब 12वीं की लड़की है मतलब वो तो एक्चुअली फ्रेंड जैसी हो गई। माँ की फ्रेंड हो गई। उसके सारे दुःख दर्द उसने कहने चाहिए। पर उस माँ ने भी उसको ऐसे दोस्ती का एक एनवायरनमेंट देना चाहिए, नहीं दे जो नहीं हो रहा है। नहीं दे शायद इस लड़के के साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो श्रद्धा। और जो लड़कों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हम एक इस प्रकार का एक जो प्रेशर खड़ा कर रहे हैं, एजुकेशन का। एजुकेशन का कि तू यदि पास नहीं हुआ तो तेरी ज़िंदगी बेकार है। लेकिन आप देखोगे न तो विराट कोहली, न तो सचिन तेंदुलकर, ये नॉट इवन स्टीव जॉब्स सर। नॉट इवन स्टीव जॉब्स और बिल्कुल फॉर दैट मैटर धीरूभाई अंबानी आल्सो कौन से पढ़े लिखे हैं। लेकिन देखो एक मन के अंदर जो विश्वास था उस कारण से बड़े हो गए। तो ये उदाहरण घर में बताते ही नहीं है। हमको खाली विराट कोहली का बड़ा बंगलो दिखाते हैं, हमको खाली सचिन तेंदुलकर का 150 करोड़ का घर दिखाते हैं और बोलते हैं, देखो उसने कितना बड़ा काम किया, तुम क्या कर रहे हो। अरे किससे किसकी क्या तुलना कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अरे ईश्वर ने एक बहुत अच्छी एक आकृति बनाई है, एक उसकी रचना है। अरे व्यक्ति अपने आप में एक नायाब व्यक्ति है, एक अद्भुत व्यक्तिमत्व है। लेकिन उसको वो हम ऐसा एनवायरनमेंट देते नहीं, उसको ऐसा विश्वास देते नहीं, जो देने की आज की आवश्यकता शक्त। उसके साथ काउंसलिंग करो, कॉलेज में भी काउंसलिंग नहीं होता है। वो शिक्षक को न विद्यार्थियों से कोई प्रेम रहा है, न विद्यार्थियों को शिक्षक से, न कोई उसको खाली मेरे मार्क्स आने चाहिए बस, उसके लिए जो करना है वो करता है वो। सर इवन जब मैंने एमबीए किया था, हम अगर कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो हमारे मेंटर को पूछते थे। अगर हम कोई कॉम्पिटिशन के लिए जाते थे, मेंटर को पूछते थे, उसका अप्रूवल लेते थे, उससे कुछ नया टिप्स लेते थे, फिर हम जाते थे, तभी हम कॉम्पिटिशन जीतते थे। अगर हम ऐसे ही जाएँगे, बिना पूछे जाएँगे और जैसे आपने अभी बताया, वो कॉलेज में फैकल्टी को इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए बेरोज़गारी का एक मेन रीज़न यही है सर, कि कॉलेज में जाने वाले बच्चों को फैकल्टी का गाइडेंस नहीं मिलता। कॉलेज एक्टिविटी करती है लोगों को दिखाने के लिए, नेक में दिखाने के लिए। एक्चुअल में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। 7 बजे, 8 बजे आने का, 12 साढ़े 12, 1 बजे घर पे निकल जाने का। बच्चे कितने बैठे थे, वो क्यों नहीं आया, वो कौन-सा पढ़ाई कर रहा है, क्यों फेल हुआ, उसका किस में इंटरेस्ट है, उनको कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। कॉलेज से छूटना है, मेरा कोचिंग क्लास चलाना है और यही सर्कल पे काम करना है। तो ये बेरोज़गारी का मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है। तो काउंसलिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि फेल्योर होना या सब्जेक्ट में फेल होना, दिस इज़ नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। जैसे आपने बताया धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, सब फेल होके आज बहुत बड़े बने। बड़े बात। सो आई देश फेल्योर से घबराना नहीं चाहिए। एक अनुपम खेर का मैं बहुत अच्छा एक इंटरव्यू सुन रहा था और बोले कि मेरा ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर मैं फ़ेल हो गया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि चलो तेरा फेल्योर सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं मतलब आज तो बहुत जम के मेरी मतलब धुनाई होने वाली है। क्योंकि वो जब हुए थे तब तो धुनाई करने की प्रथा चल रही थी। आजकल हम बच्चों को मारते नहीं हैं। पर उस समय था, मैं डरते-डरते गया लेकिन उन्होंने तो बढ़िया होटल के अंदर बोले मेरे साथ में बढ़िया उस दिन पहली बार मैंने सुरापान किया और पिताजी साथ में थे और बोले अरे फेल्योर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। चिंता क्यों करता है? अरे जीवन में बहुत कुछ करना है। और वहाँ फेल हुआ लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में देखो सक्सेस हो गया। इतना बड़ा सक्सेस हो गया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। अपने आस-पास में भी हम देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे।
लेकिन ये जो एक डेयर टू फेल, ये जो भाव एक देना चाहिए बच्चों को, उसको पूरा निर्भय बनाना चाहिए, और ये संस्कारों से आता है। तो ये हमने एनवायरनमेंट देना पड़ेगा इस, और चल रहा है धीमे धीमे, वो तैयारी हो रही है। सचिन सर, अभी आपको पूरा 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जब आप कॉलेज स्टूडेंट थे तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी स्ट्रेस हुआ होगा, पर आज के समय में भी आपको कभी ना कभी स्ट्रेस होता ही है। तो आप यूथ को या मिड बच्चों को क्या बता सकते हो कि स्ट्रेस होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो कैसा है कि देखिए, फेल्योर इज इनएविटेबल, हो सकता है मैं भी फेल हुआ हूँ, यानी फेल ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी कहीं रुकी नहीं, लेकिन फेल होने का मजा मैंने भी चखा है। लेकिन न मेरे पिताजी ने कभी उसके लिए मुझे अलग से ताने मारे, न मेरी माँ ने कभी कोई ताने मारे। उन्होंने ये कहा कि बेटा, तुम्हें गंभीर होने की आवश्यकता है, थोड़ा गंभीर हो जाओ। और इतना इशारा जो था वो मेरे लिए पर्याप्त था। एंड आई अगेन टाइटन माय बेल्ट एंड अगेन स्टार्टेड वर्किंग एंड देन नेवर लुक बैक। तो ये जो माता पिता जिस प्रकार का सोचते हैं, उसके अनुसार बच्चे तैयार होते हैं। तो आज उस समय पर मैंने कैसे हैंडल किया उसको, तो स्वाभाविक था, फेल हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा उस समय पर, पता नहीं ईश्वर की देन है, लेकिन थोड़ा एनालिसिस किया कि मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक है क्या? मेरा बाकी का फ्रेंड सर्कल ठीक है क्या? मेरा जो अच्छा सोचने वाले हैं, मैं उनके साथ में कितना समय देता हूँ? मैं किस प्रकार का रीडिंग करता हूँ? रीडिंग का बहुत बड़ा परिणाम होता है। हम केवल फ़ेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर छोटे-छोटे जो कुछ कमेंट्स आते हैं या रील बनती है, उसके ऊपर ही हम यानी पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कुछ न कुछ विषय पर डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, और ये जितने सफल लोग हुए हैं, इनका साहित्य पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता था, स्वामी विवेकानंद का मैंने साहित्य पढ़ा, तो मेरे मन में से डर निकल गया। और फेल्योर का जब डर निकल जाता है ना, तो आदमी सक्सेसफुल होता है। तो फेल्योर का डर नहीं रखना, तो सब होता है। सचिन तेंदुलकर के भी जीवन में बहुत बैड पैचेस आए। आप देखेंगे पूरे कैरियर में, तो इतने सारे ज़ीरो बनाए उन्होंने। तो हर ज़ीरो के बाद में उनको ऐसा लगता होगा कि आई एम फिनिश्ड। लेकिन फिर सुबह में 4:30 बजे जाकर के खड़े हो गए और नेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। रोज़ के 800 बॉल खेलते थे वो। रोज़ के 800 बॉल खेलना, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन बोले उतना मुझे था ही, मैंने करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो ऐसा हर फेल्योर में से सीखना और अपने आप को इम्प्रूव करना और निराश नहीं होना, ये आवश्यक है। सर, अभी अगर आप देखोगे, अभी जो ट्रेंड चल रहा है या मार्केट में भी चल रहा है, टीवाई होने के बाद एमबीए में बच्चे एमबीए में जाते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, देन दे गेट अ प्लेस विद अ वेरी गुड कंपनी। तो आप टीवाई के बच्चों को क्या मैसेज दोगे कि टीवाई करने के बाद एमबीए करना इंपॉर्टेंट है, कि टीवाई करने के बाद जॉब करना इंपॉर्टेंट है, या टीवाई के बाद पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? तीनों अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। एक तो जॉब करना चाहिए, ये आपने बताया। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जॉब मिलेगा। किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। अब वो करनी चाहिए कि नहीं, ये उसका स्वतंत्र डिसीजन हो सकता है। इसके लिए मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाऊँगा। लेकिन अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इस पर यदि हमने चिंतन किया, इसके ऊपर यदि हमने थोड़ा-सा डीप थिंकिंग किया, तो उसके सारे उत्तर मिल जाएँगे। कई बार आदमी को बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना रहता है, बट ही स्ट्रेटेजिकली डिसाइड्स इज दैट आई विल वर्क फॉर सम डेज, आई विल हैव सम सर्विस, आई विल डू सम जॉब फॉर सम years and will try to understand the nitty-gritties of that particular business. And once I understand that properly, then yeah, then I can start. तो एटीट्यूड क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes, sir. And this entire business process, definitely MBA works. बिकॉज़ एमबीए में बच्चे मैनेजमेंट सीखते हैं। फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, डिफरेंट आपने भी एमबीए किया हुआ है।
So I think that MBA also helps them to grow themselves and to grow business. So I think this is the one part what you are just trying to convey. Yes, yes. See, MBA hai, Education is important. education is important. Yes, education is important, but it's not that important. Is not that important than your attitude. True, sir. If you don't have the attitude and you just go on studying, you will add only There is no point. you will add only the degree. Yes, sir. But unless until you have that killing instinct, Yes, sir. unless until you have that urge from within, Yes. and that from within urge, that comes from the culture. That cultures come from your friend circle. That culture starts from your family. That culture starts from your forefathers. That culture starts from your time management. There are so many factors that work together. Yes, yes. Dhirubhai Ambani thought is that I have to be a businessman. I have to be an industrialist. The moment he decided he changed his attitude. And he asked only for 5 minutes from Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said, for 5 minutes, it's okay, fine, come in and let's have some discussion. And then that meeting lasted for more than 1 hour. Why? Because the kind of the experience-based discussion that was going on. And Dhirubhai Ambani was a very practical person. So, this is a very famous incident and the event where this thing actually happened. And from there, his, the entire career just took a takeoff. True, sir. True. तो उनके अंदर का जो एटीट्यूड था वो देखा इंदिरा गांधी ने कि अरे ये आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है और बनना चाहता है और बन सकता है, तो मैंने इसको खाली थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत है। बाकी की मैं उसके इतिहास में बहुत जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा उसमें से ये एक प्राइम ऑब्जर्वेशन था। ये इस आदमी में पोटेंशियल है। Potential है. True, sir. तो अपना पोटेंशियल कोई ना कोई बहुत ध्यान देकर के देख रहा है और अपने को मेंटर कर रहा है और अपने को कोऑपरेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Right. Sir, I think जितना कुछ आपने बताया, that was the best thing what you have given to us, that is on basis of your experience. तो सर एक फाइनली मैं एक आपको पूछना चाहूँगा that we अक्षय एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारे पास जो बच्चे आते हैं जनरली MBA कैट CET पढ़ने आते हैं, तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको वैसे कौन से 3 टिप्स देना चाहोगे जिसको यूज करके they will grow and they will learn something from you, sir? 3 tips, sir. Number one is attitude. He has to change his attitude. He has to have a killing instinct. It is that I have to achieve this in my life. Yes, sir. And let us have the graph plotted. Time versus achievement. Yes. He has to decide. It's not कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मतलब क्या? So he has to define his goals. He has to define his goal. He has to design his attitude, and he has to actually work very sincerely and very smartly for that particular First is attitude. First is attitude. Second is a killing instinct that he has. He has to give a lot of nurturing to that killing instinct. And the third one is that he has to have a proper smart planning for that. Yes. Planning plus execution, what we call. Once you have a killing instinct, no? Definitely. That execution will automatically happen. It happen. But unless until you have a plan, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में कि if you fail to plan, you are planning to fail. Yes, sir. तो you have to plan. Yes, sir. Right. और ये प्लानिंग जब अभी मेरा तो ग्रेजुएशन पूरा हो गया, चलो मैं प्लान करना शुरू करता हूँ, नहीं. नो, इट्स टू लेट. आदमी के 10वीं के अंदर he has to decide. In today's world, he has to decide when he is in the 10th standard that what he wants to become. And that kind of the counseling has to be done with each and every youngster, each and every student.
and which is the need of the hour. यस सर। सो सर एक आखिर का एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो अभी जो सिचुएशन इंडिया की चल रही है ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में आपका क्या व्यू सर? ऐसा है कि भारत प्राचीन समय से बड़ा सशक्त देश रहा है और समय के ऐसे मोड़ पर हम आए जब 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, तो उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण हम अपने आप को भूल गए थे, अपने अंदर के बैठे हुए शेर को हम भूल गए थे। और 1971 में पाकिस्तान के साथ में एक युद्ध हो चुका था और उस समय पर हमने जम के पिटाई की उनकी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। उस समय पर बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर को वो जो पाकिस्तान की सेना थी वो हमको सरेंडर कर चुकी थी और उस समय पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उससे सबक नहीं लिया। उनको लगा भारत इज टेकन फॉर ग्रांटेड। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों को मारा और वो धर्म पूछ करके मारा, और इस कारण से एक प्रकार का जो क्रोध जिसको बोलते हैं एक सात्विक क्रोध, लेकिन वो क्रोध था अपने देश की अस्मिता का, और उस क्रोध के अंदर से ये ऑपरेशन सिंदूर आया। क्योंकि ये 26 लोग जो थे वो सारे पुरुषों को मारा और 26 सिंदूर उसने उजाड़े इस दहशतवाद ने, इस आतंकवाद ने। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद में भारत ने ये बताने का पूरा प्रयास किया है कि अब ये 1971 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। ये घुसकर मारेगा और केवल मारेगा नहीं, तुमको नेस्त नाबूद कर देगा, तुमको नक्शे से भी मिटा देगा। और अभी तक तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इसको युद्ध के रूप में घोषित कर दिया है। कल ही घोषित किया उनके यस। जो आर्मी चीफ है और प्रधानमंत्री का। भारत ने अभी तक युद्ध घोषित नहीं किया है। अभी तक भारत केवल डिफेंसिव मोड में है। लेकिन भारत ने जिस दिन युद्ध घोषित कर दिया उस दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। यस सर। और भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई यदि हमें छेड़ेगा तो उसको छोड़ता नहीं है। और वही हम 2025 के इस ऑपरेशन सिंदूर से ये बताना चाह रहे हैं। ये भारत का पूरा अंदर का बैठा हुआ शेर जागृत करेगा और एक ऐसी गर्जना करेगा कि हम केवल दुनिया की 5वीं अर्थसत्ता से अभी 4थी अर्थसत्ता कल ही घोषित हुई है। ये सब तो केवल अर्थसत्ता में नहीं, हम सारी सत्ताओं के अंदर धीमे धीमे हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने वाला ऐसा एक राष्ट्र बन करके उभरेंगे, विश्व गुरु बन करके उभरेंगे। इस ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम यही होगा कि सारी दुनिया भारत का लोहा मानेगी, और हम चाहते हैं कि भारत का लोहा माने। Yes. With this podcast, with this answer, really inspires us a lot. मैं प्रशांत देशपांडे जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए टाइम निकाला, समय निकाला और हमें गाइडेंस दिया, हमें एक सही दिशा बताई। सो वंस अगेन प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।